امرہ کی ڈائری کا ایک صفحہ۔ وہ سب چلے گئے، اپنے ساتھ وقت کو لیے اور اس وقت کی ہر یاد کو بھی، دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرنے، کبھی دوبارہ نہ ملنے۔ میوزک بارز، کلب اور کینٹین میں مل بیٹھ کر فٹ بال میچ دیکھنے والے اب گھروں کی خاموشی میں دیکھا کریں گے۔ میزوں پر چڑھ کر جیت کا جشن منانے والے، کندھوں پر دوستوں کو اٹھا کر ہاں ہو کرنے والے اب ایسی حرکتوں کو بچکانہ سمجھیں گے۔ کاروں کی ریس لگانے والے، میوزک کانسرٹس کی ٹکٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، پورا ہفتہ ویکنڈ کا انتظار کرنے والے، ہر ہفتے گھر جانے والے، ماماز بوائے اور بار بار بلانے پر بھی گھر نہ جانے والے، جمپر بوائز، سیکرٹ سوسائٹی کے سبھی جیٹ لی، بروس لی، یہ سب چلے جائیں گے۔ ان کی اسٹوڈنٹ ڈائریاں گردآلود ہو جائیں گی اور کسی اداس شام سڑک کے کنارے چلتے، دریا کے کنارے بیٹھے، کیفے میں کسی کا انتظار کرتے یا آتش دان کے قریب بیٹھ کر یونیورسٹی پر بنی کوئی فلم دیکھتے، یہ گزرے وقت کو سوچ کر اداس ہو جایا کریں گے۔ سینئر پارٹی میں سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر کی تھی۔ سب سے پہلے ویرا نے ان کے لیے ایک الوداعی روسی گانا گایا۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے جو ناپسندیدگی میں نے دل میں چھپا رکھی تھی اب وہ باہر آنے لگی تھی اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ کارل نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسے افسوس رہے گا کہ وہ ان میں سے چند ایک کو الو نہیں بنا سکا تھا کیونکہ باقی الوؤں نے ہی اس کا سارا وقت لے لیا تھا۔ عالیہ نے بہت کچھ کہا اور میں نے چاہا کہ وہ بس بولتا ہی رہی۔ اس نے کہا، میں تم سب کو تمہاری عادتوں سمیت یاد رکھوں گا۔ بھلا میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ کیسے تم سب نے اپنی اپنی برتھ ڈے پارٹیز میں ایک ایک پاؤنڈ کے کیک کے ساتھ 70 اسٹوڈنٹس کے پیٹ بھرے اور پھر اترا کر اسے گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کا نام بھی دیتے رہے۔ تم میں سے اکثر نے جب بھی مجھے ٹریٹ دی میرے ہی ساتھ بیٹھ کر ساتھ ساتھ کھا کر دی، یعنی آدھی، اور جب بھی واپس لی پوری لی۔ اپنے خالی والیٹ مجھے دکھا دکھا کر تم سب مجھے خود پر ترس کھانے کے لیے کہتے رہے اور میں نے ترس کھایا بھی، اور جب میں نے اپنا خالی والیٹ تمہارے آگے کیا تو تم نے منہ بنایا، وہ بھی دی ہلک جتنا بڑا اور ہرا۔ عالیان کے بعد میں کھڑی ہوئی میز پر تقریر کے لیے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ میرا ہی نام آنا چاہیے نا، اور میں نے کہا مجھ میں سمیٹ لینے کا ہنر ہوتا تو تم سب کو چھوٹے چھوٹے بونے بنا کر ایک ڈبے میں سمیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتی، کہیں جانے نہ دیتی۔ میری اس بات پر سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ دیکھا، میری تقریر ویرا کے روسی گانے سے زیادہ باکمال تھی۔ ویرا، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے، امرہ بھی بڑے کام کی چیز ہے۔ پھر سائی آیا جو پورے 2 منٹ تک کھڑا روتا رہا۔ اس کی جگہ کارل نے تقریر کی، میں نے ایک کتاب لکھ لی ہے جس میں تم سب کے راز بیاں کیے گئے ہیں۔ جاتے جاتے سب ہزار پاؤنڈ میرے پاس جمع کرواتے جانا اور کتاب میں سے اپنا نام اور راز کٹواتے جانا، ورنہ چند سالوں بعد اخبارات کی سرخیاں بننے، طلاقیں لینے اور دیوالیاں ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ شکریہ، نیک تمنائیں، سائی انبھیس کارل۔ میں نے عالیان کو اسکیچ نہیں دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران میں ارلی لرننگ میں کئی بار اس کے پاس سے جا کر پلٹ آئی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپسیٹ ہو جاتا ہو اور اس کا رزلٹ خراب ہو جائے، کیونکہ ہر حال میں اتنا تو جان گئی ہوں کہ میں اس کے لیے ایک وبال بن گئی ہوں۔ سینئرز اور جونیئرز کے چند گروپ میں ایگزامز کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے۔ کشتی رانی کے مقابلے کے دوران عالیان اور کارل کی کشتی الٹ گئی تھی۔ اس وقت کنارے پر کھڑے میں نے خود کو ناک تک گہرے پانیوں میں ڈوبا پایا تھا اور اس حالت میں مجھ پر بہت سے انکشافات ہوئے تھے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے لیے رضاکار بنے میں نے بھی جانے والے اسٹوڈنٹس کی چیریٹی کے لیے دیے جانے والے سامان کو اکٹھا کیا تھا، کتابیں، کپڑے، گھریلو استعمال کی دوسری چیزیں اور نہ جانے کیا کیا جو وہ ان سالوں میں خریدتے رہے تھے اور اپنے ساتھ واپس نہیں لے جا سکے تھے۔ اس سامان کو ہم نے نیلام کر دیا تھا۔ اوک ہاؤس سے اکٹھا کیے جانے والے سامان سے مجھے ایک ڈائری ملی جس پر سائی کے لیے لکھا تھا اور کوئی نام نہیں تھا۔
अगले दिन साई को देने से पहले मैं खुद को उसकी बरकतानी से रोक नहीं पाई। डायरी लिखने वाला बहुत ही हसास स्टूडेंट था। उसने खजा में गिरने वाले पत्तों पर भी आंसू बहाए थे। डायरी के आखिरी सफ़ात में मैंने अपना नाम पढ़ा और उसके आगे सिर्फ इतना लिखा था। मैंने उसे रोते हुए देखा। वो बार बार अपनी आंखों को मसल रही थी। मैनचेस्टर से दूर दुनिया के किसी हिस्से में रहते मैं कभी कभी ये जरूर सोचूंगा, क्या वो दोनों एक हो गए। उन सत्रों ने मेरे अंदर सन्नाटा भर दिया और फिर मेरे वजूद ने अंदर ही अंदर सारी दुनिया से छुपकर, खासकर मुआशरे और रवायात से आलियान का विर्द किया। मेरी आंख में बहुत खूबसूरत मनाजिर मुकीद हैं। मैंने माजी में खुद को बहुत कम मबहूत होते पाया है, लेकिन जब आलियान के बिखरे बालों पर पलकों पर अफशा गिरने लगी, गिर गिर कर टहलने लगी, तो मैंने मबहूत होने का मतलब जान लिया। वो उछल रहा था, उनके साथ गा रहा था, अपने सर को झटक रहा था। मैंने इस मंजर को तसव्वुर में जामिद किया और खुद को उसकी आंखों के करीब कर कर उसकी आंखों पर पलकों पर फूंक मारी और अफशा को हथेली में कैद कर लिया और फिर अपनी पोरों से उसकी पलकों को छूकर मैंने वो अफशा समेट ली। मैंने मुट्ठी बंद कर ली। मेरी पुश्त पर हजारों सवाल चीख चिंगार रखे थे, वावेला मचा रखे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं सुना। मेरी मुट्ठी को खोलकर मेरी अफशा चुराए जाने की हिम्मत अब कोई नहीं कर सकेगा। वो वीडियो बनाने में मसरूफ था और मैं आंखों की पुतलियों से उसकी तस्वीरें लेने में। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मुझे इससे मतलब ही नहीं था। मैं उससे चंद बार साइकिल से गुजर चुकी हूँ। मेरा ख्याल है ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन देखने वालों का मानना है कि सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं। मैं इस पर वजाहत नहीं दूंगी। मैं अब वजाहतों से बचना चाहती हूँ। मेरी क्लास फेलो ट्रेसा का कहना है कि सोचें आधी खुशी निकल लेती हैं और इंसान को पूरी खुशी मिलती ही कहाँ है कि वो आधी को भी खो दे। मैं इस पर भी वजाहत देना पसंद नहीं करूँगी कि मैं हार्ट रॉक जाने वाले रास्ते पर खुद को खड़ा क्यों रखती हूँ और हर रात पैगामात लिखकर उन्हें संभाल लेना मैंने अपना मामूल क्यों बना लिया है। मैं समझती हूँ कि अपनी ज़ात का हिसाब किताब अगर हम किसी और से निकलवाते हैं तो हमेशा जवाब गलत निकलते हैं और खुद ही इस हिसाब किताब को करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैंने अब इजाज़त लिए बगैर अपनी ज़ात के सारे सवालात निकाल लिए हैं और जवाबात में आलियान को निकलते पाया है। गोशवारा अमरा बनाम आलियान। डायरी के उन आखिरी सफ़ा तक आते आते मैंने सोचना कम कर दिया है, क्योंकि मैंने अगर ऐसा करना शुरू किया तो मुझे अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ेगी और मेरी अफशा उड़ जाएगी। आलियान की डायरी का एक सफ़ा। मेरे बहुत से हॉलमेट्स, यूनिफेलोज और दोस्त जा चुके हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं सहम गया हूँ। मेरा मैनचेस्टर, मेरी दुनिया मामा से आबाद है, लेकिन इस बार मुझे दुनिया खाली खाली लगने लगी है। क्या ये सब उनके जाने से हुआ है? मैंने खुद को फजूल काम करते भी पाया, सड़क पर चलते बसों और कारों को गिनते, लोगों के चेहरों पर न जाने क्या तलाशते और उनके चलने के अंदाज और जूतों की बनावट पर गौर करते। कभी कभी मुझे लगता है मैं बेमकसद जिंदगी गुजार दूंगा और अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकूंगा। मुझे खुद को पुरजोश करने के लिए मामा महर को याद करना पड़ता है और मामा मार्गरेट का ख्याल आते ही मैं किसी सजा की कैफियत में आ जाता हूँ। मेरे लिए मुस्कुराना आसान हो गया है और खुश रहना मुश्किल। वो सारी छोटी छोटी कहानियाँ जो मैं सुना करता था, अब मुझे उनसे नफरत सी क्यों होने लगी है। और मैंने जो इतना अरसा खुद को मामा के खतूत और डायरियों से दूर रखा, अब हर वक्त मैं उन्हें पढ़ने पर माइल क्यों रहता हूँ? क्या मैं उनकी और अपनी कैफियत का मुआवजा करना चाहता हूँ? मैं मामा की डायरियों से सबक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं बनना जो मामा बन गई थी। वो कमज़ोर थी, मैं भी कमज़ोर हूँ, लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी उन जज्बों के सामने जो हम अपनी हथेलियों में भरकर घुटनों के बल झुककर किसी के कदमों में निछावर कर चुके होते हैं। मैं खुद को मजबूर भी पाता हूँ और पाबंद भी। मैं दो हिस्सों में बटा हुआ हूँ। अगर मुझे एक पुरसकून जिंदगी गुजारनी है तो मुझे
दोनों हिस्सों को एक करना होगा तो फिर मुझे वीरा को हाँ कह देना चाहिए था। रोज देखने के लिए उसका रोज अच्छा ही होगा उसकी तरह, और मुझे जिंदगी को और ज्यादा जोश से जीना होगा ताकि बेखुदी मुझे हरा ना दे। वीरा की डायरी के चंद सतरें। एग्जाम्स के बाद मैं रोज जाना चाहती थी। मुझे पापा से मिलना था, बर्फ पर फिसलना था, लेकिन सारी तैयारी करके भी मैं नहीं गई। मैं भी क्यों नहीं गई? मेरा ख्याल है आलियान हाँ कह देता तो अब हम दोनों रोज बैठे होते। उसने कहा अभी वो रोज देखना नहीं चाहता। ठीक है, फिर मैंने भी अपना सामान खोल दिया। मुझे अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करनी भी आती है और उनका ख्याल रखना भी। इसीलिए मैं आलियान का बहुत ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इस वक्त एक उसे ही सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। साई की डायरी के जज्बात। अमरा ने जो डायरी मुझे दी उसे पढ़कर मैं कई रातें सो नहीं सका। वो एक ऐसे स्टूडेंट के एहसास से भरी हुई थी जो कई सालों तक ये फैसला करने में नाकाम रहा था कि उसे अपनी दोस्त से मोहब्बत है या सिर्फ लगाव। लड़की उसके मुल्क में, उसके आबाई शहर में, उसके घर के सामने वाले घर में रहती थी। एक रात उसे ओक हाउस में लड़की की अचानक मौत की इत्तला मौसूल हुई। लड़की के दिमाग की नस फट चुकी थी। फिर उसे फैसला करने में आसानी हो गई कि अब वो उसके बगैर ऐसे जिंदा है जैसे उसके साथ ही मर चुका है। कुछ फैसले सिर्फ दायमी जुदाई के हाथों ही तय पाते हैं। इससे पहले खबर होती है ना एहसास, और मैं बहुत से लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक ठीक वो तहरीर पढ़ने की कोशिश करें जो कोई आपकी ज़ात में रकम कर गया है। काल की डायरी के कारली ख्यालात। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं काल गला दबाकर उसे ख़त्म कर डालूं कि कैसा बेकार है ये काल, यानी कि वो जॉर्ज मेरी पूरी 11 ट्वीट्स लेकर भाग गया, और जीना जिसने मुझसे कहा था कि वो जाते हुए मुझे अपनी कार देकर जाएगी अगर प्रॉम नाइट की मुतवक्का क्वीन का ड्रेस या मुंह में किसी तरह से बिगाड़ दूं या उसे प्रॉम नाइट में आने के काबिल नहीं ना छोड़ूं, तो मैंने दूसरा काम कर दिखाया और फूड पॉइजन से उसे प्रॉम नाइट से दूर रखा। और जीना अपना बोरिया बिस्तर और क्वीन क्राउन समेट कर मुझे कार दे जाती। मैं जल्द ही अमेरिका जाऊंगा। आजकल मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। वेलकम वीक के लिए इस बार मैंने कुछ ऐसे मस्नूई कीड़े दरियाफ्त किए हैं जो खाल के साथ चिपक कर खाल को नीला कर देते हैं। ये वही कीड़े हैं जिन्हें देखते ही लड़कियाँ उछलने और फुदकने लगती हैं। और इस बार मैंने पेन में पहले से ज़्यादा ताकतवर बैटरी फिक्स की है, सिर्फ इतनी ताकतवर कि जब तजर्बे के तौर पर मैंने शावेज को उससे छुआ तो वो उछल कर दूर जा गिरा और उसने इकरार किया कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुछ और भी हालात हैं, लेकिन अभी मैं उन पर काम कर रहा हूँ। फ्रेशर्स, आखिर तुम कब आओगे? तुम्हारा कार, नेक तमन्नाएं। आस्क मी की शर्ट पहने और आस्क मी का बोर्ड पकड़े वो काफ़ी खुश थी। वो अपना बोर्ड लेकर सबसे पहले आलियान के पास गई। पूछो, मुझसे क्या पूछना है? जिस वक्त मैं तुम्हारे पास आई थी उस वक्त तुमने कॉफ़ी के 1000-2000 कप पी रखे थे। वो तो मैं हौसलामंद थी जो तुम्हारे अंदाज और अतवार और लबो लहजे पर लोने लगी थी। वैसे मुझे ये बात बाद में डेरिक ने बताई थी कि लड़कियां जानबूझकर बार बार आकर तुम्हें तंग कर रही थी, और हैरत हुई ये सुनकर कि ऐसी लड़कियों के सर पर तुमने आस्क मी का बोर्ड क्यों नहीं दे मारा। शायद उन सब का गुस्सा तुमने मुझ पर निकाल दिया था। क्या तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया था मुझ पर? अच्छा, ऐसा करो, मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मुझ जैसी डरी सहमी और बेचारी सी लड़की आती है तो उसे कैसे डील किया जाता है, और अगर उसे उस जगह तक छोड़ाया जाए जहाँ जाने के बारे में वो पूछ रही हो तो हमारी अजमत और शान में कमी नहीं आ जाती। वैसे आज भी कॉफ़ी ही पी कर निकले हो ना? ठीक है, आज तो ज़रूरी था। ज़रूरत भी क्या है सबसे नरम खोई से बात करने की। वो उसके साथ खड़ी बोलती रही। एक स्टूडेंट आलियान के पास उससे कुछ पूछने लगा। हाथ के इशारे के साथ वो उस स्टूडेंट के साथ जाने लगा और दूर चला गया। उसी दौरान एक एशियाई लड़की उसके पास आई और काफ़ी देर तक उसका सर खाती रही।
یا تو اس لڑکی میں بولنے کی طاقت بہت زیادہ تھی یا اس نے سمجھ رکھا تھا کہ دوسروں میں سننے کا حوصلہ بے مثال ہے۔ وہ کافی تفصیل سے اسے یہ بتانے لگی کہ کن خطرناک مراحل سے گزر کر اور اس کا داخلہ یونی میں ہوا ہے، کیونکہ ان کے دادا مان ہی نہیں رہے تھے۔ ایک دوسری لڑکی آئی اور کھڑے کھڑے یونیورسٹی کے بارے میں سب جان لینا چاہتی کہ اس نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر کا انتخاب کن مراحل سے گزر کر کیا جاتا ہے اور معزول کن مراحل سے گزر کے، اور کچھ کا خیال تھا کہ آسک میں سب بتا سکتے ہیں، یہ بھی کہ آکسفورڈ سے بس کہاں کہاں لے جاتی ہے، اور یہ بھی کہ کنٹین میں برگر کتنے کا ہے اور کافی کتنے کی۔ ایک نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس کی دوست جمی کہاں ہوگی اس وقت یونی میں۔ کسی کا سوال صرف اتنا سا تھا کہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے آنے سے وہ یونی میں جلد مشہور ہو جائے گی۔ تو 1 سال پہلے عالیہ نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ ہر برداشت کی ایک حد بلا آخر ہوتی ہے۔ تو جس مقام سے وہ گزرا ہے اس مقام سے وہ گزرے گی تو جان پائے گی کہ حقیقتاً ہوتا کیا ہے اور پھر محسوسات کیا ہو جاتے ہیں۔ جیسمین، یہ تمہاری گردن پر کیا ہے؟ گہرے سرخ بالوں والی لڑکی نے چلانے میں کنجوسی برتی نہ احتیاط دونوں امرہ سے ذرا دور سے تھیں۔ جیسمین نے تڑپ کر سرخ بالوں والی کی طرف دیکھا۔ کیا ہے میری گردن پہ؟ او مائے، تمہاری گردن تو نیلی پڑ گئی ہے۔ یہ چھوٹا سا کیڑا، یہ تو زہریلا لگتا ہے۔ اوف، یہ تمہاری گردن سے اتر ہی نہیں رہا، اور یقیناً اس نے اپنا ڈنک تمہاری گردن میں گاڑ رکھا ہے۔ زہر پھیل رہا ہے تمہاری گردن میں۔ یہ سن کر جیسمین نے چلانے میں اپنی دوست کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی امرا کی ہنسی نکل گئی۔ ان سب نے یہ خاموش معاہدہ طے تھا کہ کال کے بارے میں کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ ایک اسٹیریوٹائپ لڑکا آیا اور سر کے بل زمین پر گول گول پنکھے کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے ہاتھوں، کانوں، ناک، بھووں، زبان اور گلے میں زیورات کی کئی اقسام پہن رکھی تھی۔ قریبا جوار والوں کو ہوا دینے سے جب وہ فارغ ہو چکا تو آسمی امرہ کے پاس آیا۔ ہائے، میں فیفی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں میمی ہوں۔ امرہ اس کے زیورات دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈین سے ملنا ہے۔ کیا انہیں تم سے ملنا ہے؟ میرا مطلب ہے ڈین سے ہی کیوں؟ ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ پہلے ذرا بڑے لوگوں سے شروعات کروں۔ کس چیز کی شروعات؟ ملنے کی۔ کیوں، کیا تمہیں انہیں اپنے زیورات میں سے کچھ عنایت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ویسے وہ زیورات نہیں پہنتے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا دوں کہ تمہارے حصے مزاح انتہائی بکواس ہے۔ وہ غصہ ہو گیا۔ شکریہ بتانے کے لیے، تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے تمہارے زیورات ٹوٹ کر چھڑ سکتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، ڈین بھی تمہارے ہی انتظار میں ہوں گی۔ میں چند اور اسٹوڈنٹس کو بھی ان سے ملوا چکی ہوں۔ ویلکم ویک پر تو وہ خاص فریشر سے ملتے ہیں۔ اسے لے کر وہ ڈین یعنی کارل کے پاس آئے۔ کارل، یہ ڈین سے ملنا چاہتا ہے۔ کارل نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آئیے جناب، جائیے جناب۔ امرہ زیر لب ہنسی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ سر کے بل گھومنا چھوڑ دے گا یا ڈین سے ملنے کا خیال سر سے ہی نکال دے گا۔ دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا۔ اس بار فریشرز میں نمونوں کی بھرمار تھی، جیسا کہ ایک لڑکی کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے پیرس فیشن ویک کے ریمپ سے چلتی سیدھی یونیورسٹی آ گئی ہو۔ اور ایک نے کانوں میں اتنے بڑے بندے اور کلائیوں میں ایسے کڑے پہن رکھے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کرتب سازوں کے آلات فن چرا لانے کا شغل رکھتی ہو۔ اور چند فریشرز کو دیکھ کر امرہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ایک جنگل ہے اور ہم اس کے باسی، یا یہ کہ بہت رہ لیا اس قدیم سی دنیا میں، چلو اب کسی اور سیارے کی طرف نکلیں۔ یا شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں انسان بنے رہنے سے تھک گیا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں انسان ہی ہوں، اب مجھے کوئی اور مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ڈیرک اس کے پاس آیا۔ میری جگہ کھڑی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ کر دانت نکالے۔ کچھ بتا نہیں سکتی، کاش میری بھی ناک لمبی ہوتی تو میں اپنے احساسات جان پاتی۔ جس طرح تم میری ناک کو گھور رہی تھی، میں نے اس رات سنجیدگی سے ناک کی سرجری کروانے کے بارے میں سوچا تھا، پھر سوچنا ترک کیوں کر دیا؟ اس نے دانت نکالے۔ اسے ایک چاکلیٹ ٹویٹ دیکھ کر
थोड़ी गपशप लगाकर वो चला गया। वेलकम वीक का आखिरी दिन था। मामूल से ज्यादा स्टूडेंट्स का रश था कि इंतहाई हाई फाई ड्रेसिंग में, आंखों पर चश्मा लगाए, किसी मशहूर और मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट से बाल बनवाए एक लड़का स्टारडम की धूल उड़ाते 4 अदद काले पेंट कोट और चश्मे चढ़ाए गार्ड्स के नरगे में यूनी के अंदर आया। उसके आगे पीछे फोटोग्राफर्स का हजूम था जो धड़ाधड़ उसकी तस्वीरें बना रहा था। अमरहा मुंह खोले देखती ही रह गई। वो देख रही थी कि क्या वो इतना ही खूबसूरत है हमेशा से। अगर गार्ड्स और फोटोग्राफर उसके गिर्द ना भी होते तो भी वो हजूम को रोक लेने का कमाल रखता था। उसका फेवरेट सुपरस्टार कुछ फासले पर था। क्या ये सच था? फ्रेशर्स जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए। खासकर अफ्रीकी, एशियाई, छोटे और तरक्की पजीर मुल्कों के स्टूडेंट्स उस खूबसूरत और मशहूर इंसान को गर्दनें उठा उठा कर देखने लगे जिसकी तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर्स मरे जा रहे थे और उनके पीछे माइक हाथ में लिए टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स लाइव कवरेज कर रहे थे। मिस्टर जैन ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया है। ये एक दानिशमंदाना फैसला है, लेकिन मैं थोड़ा तशवीश में मुब्तला हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी इंतजामिया उनके लाखों फैंस को यूनिवर्सिटी तक आने से रोक सकेगी। मुझे खदशा है कि वो ऐसा नहीं कर सकेगी। माइक हाथ में लिए टीवी रिपोर्टर अपनी पोनीटेल को हिला हिला कर तेज तेज बोल रही थी। पैंट की एक जेब में हाथ डालकर वो खड़ा हो गया और यूनी को सिर उठाकर देखने लगा और ऐसा करते उसने गर्दन को ऐसा खम दिया कि अमरहा सांस लेना भूल गई। अपने सारे जरूरी काम छोड़कर फ्रेशर्स इनमाक से मिस्टर जैन को देख रहे थे। ये जरूर कोई फिल्म स्टार है या शाही खानदान का फर्द या किसी बड़े लेकिन गैर मारूफ मुल्क का मुतवक्का शहजादा, कोई फुटबॉलर, सिंगर जिसे फिलहाल वो नहीं जानते। हाँ, वो नहीं जानते। फ्रेशर्स ने मजीद वक्त ज़ाया करना फजूल समझा और पागलों की तरह मारूफ मिस्टर जैन के मोबाइल से तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे ताकि अपने मुल्क के मुकामी अखबारात को दे सकें, सोशल मीडिया पर वायरल कर सकें। उसी दौरान लड़कियों का टोला चलता हुआ उसकी तरफ लपका। गार्ड्स ने लड़कियों को दूर से ही रोक लिया। आने दें इन्हें, उसने हाथ से इशारा किया। लड़कियों ने खुशी से बेहोश होने से पहले अपने अपने हाथ ऑटोग्राफ के लिए आगे किए और लड़के लड़कियां भी आने लगे और गार्ड्स का हल्का तोड़ने की कोशिश करने लगे। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया था। फ्रेशर्स भी आगे बढ़े। वो बेचैनी और जोश का शिकार थे। कोई इबाहम नहीं रह गया था। वो खुश हैं कि कोई स्टार उनकी यूनि में उनके साथ पढ़ेगा, वो भी उनके साथ फ्रेशर हैं। उनके फैंस ने उन पर हल्ला बोल दिया है। वेल, ऐसे माहौल में ये सिर्फ पढ़ नहीं सकेंगे या पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि मिस्टर जैन ने इतनी कामयाबियां समेट लेने के बाद भी पढ़ने का फैसला किया। पोनीटेल वाली की तेज आवाज में रिपोर्टिंग जारी थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि फ्रेशर्स का आधा मजमा आराम से सुन सकता था कि उसकी तरह की दूसरी रिपोर्टर दूसरी तरफ खड़ी तेज तेज आवाज में रिपोर्टिंग कर रही थी। वेलकम वीक के उस आखिरी दिन ये सब आनन फानन हुआ। वो आया और छा गया। चंद मिनट लगे और फ्रेशर्स उसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और जो इधर उधर थे वो भी उसी की तरफ देखने लगे कि कौन आया है। सबके मोबाइलों वाले हाथ बुलंद थे। वो सब दीवाना बार उसकी तरफ लिपक रहे थे और फिर उस घेरे के अंदर एक बोर्ड बुलंद हुआ जिसके एक तरफ लिखा था, वेलकम फ्रेशर्स, वी आर योर सीनियर्स, थैंक्स फॉर द अटेंशन। और बोर्ड की तरफ लिखा था, यू आर ऑसम फूल्स। नए आने वाले होंकों की तरह बोर्ड पढ़ते रह गए और फिर उन बुलंद बांग कहकों को सुनने लगे जो मिस्टर जैन, उसके गार्ड्स, फोटोग्राफर्स और उसके फैन उनकी तरफ इशारा कर कर के लगा रहे थे कि खिफ़्फ़त उनके चेहरों पर लिखी थी। सीनियर्स ने उन्हें आते ही धर लिया था। उन्हें बता दिया था, जरा बच के हमें बच्चे ना समझना। जब फैंस आलियान से ऑटोग्राफ ले रहे थे तो वो भी फौरन उसके पास गई थी और एक सादा कागज उसके सामने किया था। इस पर अपना नाम लिख दो। अम्मा ने उसके सामने खड़े होकर बहुत खुश होते हुए कहा था। कैमरों के फ्लैशेस उन दोनों पर पड़ रहे थे। वो उस इंसान के सामने खड़ी थी जो पूरी यूनिक की तवज्जो का मरकज बना हुआ था।
आलियान ने कागज पर ऐसे ही लकीरें खींच ली। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, लकीरें नहीं, उसने उर्दू में कहा। नाचार उसने अपना नाम लिख दिया और वो गार्ड बने कार को धक्का देकर हल्के से बाहर निकल आई और रिपोर्टिंग करती वीरा के करीब से गुजरती खुद को हजूम से दूर ले गई। और उसका ख्याल था वो एक मार का सरकर आई है, वो उसका नाम लिखवा लाई है। और इससे पहले जब उसने बेनियाजी से अपनी पैंस को देखा था तो अमरा दंग रह गई थी। क्या वो ऐसा ही हरफन मौला है? उसमें कितनी अदाएं हैं कि खत्म होने में आती हैं, न गिनती में। जब वो उसका नाम लिखवा ले गई तो आलियान को लगा वो उसका मजाक उड़ा गई है और अब उसे ये ज्यादा शिद्दत से लगने लगा कि वो उसका खिलौना है। जब जी चाहा खेल लिया, वरना तोड़ दिया और फिर जोड़ने के लिए आ गई। उन्होंने नए आने वालों को उल्लू बनाया। अब वो सब हंस रहे थे। ये आलियान का जाहिर था, लेकिन अंदर से वो खामोश था। वो सोच रहा था एक मजाक तो उसके साथ भी हुआ जो इतना अमली था कि उसे ही बेअमल कर डाला था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।